حیدرآباد کے باعزت سامعین کرام، اسد رضا کا سلام ظرافت قبول فرمائیں۔ حضرات، پہلے تو میں زندہ دلان حیدرآباد کے کارکنان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اب تک 58 سال سے وہ شگوفہ نکال رہے ہیں، بلکہ شگوفے چھوڑ رہے ہیں اردو دنیا میں، اور یہ شگوفے ان کی خوشبو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، میں جہاں بھی گیا وہاں حیدرآباد کی شناخت جو ہے وہ زندہ دلان حیدرآباد کی وجہ سے ہے۔ اب اس سمک خراشی کے بعد ایک مزاحیہ پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے نوکرانی مہارانی۔ عرض کرتا ہوں، جب سے ہماری پہلی اور آخری یعنی اکلوتی گھریلو بیوی نے ایک دفتر میں نوکری کرنا شروع کی، تب سے گھر کو نوکرانی کی ضرورت پیش آئی۔ کچھ نوکرانیاں گھر کی صفائی کرنے آئیں اور گھر کا صفایا کر گئیں۔ نتیجتاً بیوی کو اپنے نوٹوں سے بھرے ہوئے پرس اور زیورات سے محروم ہونا پڑا۔ ایک خوبصورت اور ایک خوبصورت نوکرانی بھی ہمارے غریب خانے میں کام کرنے آئی، لیکن اس بھلی مانس سے ایک بڑی غلطی سرزد ہو گئی، اور وہ یہ کہ بیوی بچوں اور گھر کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال بھی رکھنے لگی۔ مثلاً شیو کرنے کے لیے وہ ہمیں سردیوں میں ایک گرم پانی دے دیتی تھی، دفتر جانے سے قبل جوتوں پر پالش اور کپڑوں پر پریس کر دیتی تھی۔ ایک دن بھول سے ہم نے بیگم کے سامنے اس نوکرانی کی تعریف کر دی تھی، جسے سن کر بیگم نے اسے چلتا کر دیا۔ اس طرح ہمارا گھر ایک بار پھر بے نوکرانی ہو گیا، اور جب صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ ہمیں بھی قلم چھوڑ کر جھاڑو ہاتھ میں لینا پڑی، تو ہم نے ڈرتے ڈرتے بیگم سے عرض کیا، کیوں نہ نوکرانی کے لیے ٹائمز آف انڈیا میں اشتہار دے دیں۔ ہماری تجویز پر بیگم کو غصہ آ گیا، بولی، ڈبل ایم اے اور ایم فل کر کے بھی آپ کو ذرا سی عقل نہیں آئی۔ نوکرانی کیا اتنی ہائی فائی ہوتی ہے کہ وہ انگریزی اخبار میں آپ کا اشتہار پڑھ کر دوڑی چلی آئے گی، تو پھر اردو اخبار میں دے دیں گے اشتہار۔ ہم نے نہایت نرمی سے کہا، لیکن بیگم نے بدستور سخت لہجے میں فرمایا، لیکن ایک شرط ضرور اشتہار میں لگا دیجیے۔ کون سی شرط؟ ہم نے نرمی سے دریافت کیا تو گویا ہوئی، نوکرانی جوان اور خوبصورت نہ ہو۔ ارے بھائی، جوان نہیں ہوگی تو پھر پھرتی سے گھر میں کام کیسے کرے گی؟ ہم نے سوال کیا۔ جہاں تک سوال خوبصورتی کا ہے تو جھاڑو پوچھا اور برتنوں کپڑوں کی دھلائی تو حسن کش ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا، پسینہ بدبو مقدر عروس مفلس کا، کہاں نصیب میں اس کے سنگھار کی خوشبو۔ بیگم نے تنک کر کہا، یہ ترقی پسندانہ شعر سنا کر مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کیجیے۔ اشتہار میں آپ کو لکھنا ہوگا کہ ایک ادھیڑ اور بدصورت مگر اپنے کام یعنی امور خانہ داری میں مہارت رکھنے والی نوکرانی کی ضرورت ہے۔ اور بھی کوئی شرط ہو تو بتا دیجیے، کیونکہ تیر ابھی کمان میں ہے، یعنی اشتہار چھپنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ ہم نے تنزن کہا تو بیگم فوراً بولی، دوسری شرط یہ ہے کہ نوکرانی کا رنگ گورا نہیں بلکہ کالا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اشتہار میں آپ اپنا نہیں میرا موبائل نمبر دیں گے۔ ہم نے جھلا کر کہا، عموماً نوکرانیاں کالی ہی ہوتی ہیں، اس لیے اشتہار میں یہ بات لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ نوکرانی کا رنگ گورا نہیں بلکہ کالا ہو۔ یہ شرط اس لیے ضروری ہے کہ آپ جیسے مرد گوری عورتوں کی طرف جلد راغب ہو جاتے ہیں۔ اگر نوکرانی کالی ہوگی تو آپ اس کی طرف کم دیکھیں گے، اور اس طرح آپ کے بگڑنے کے مواقع کم ہو جائیں گے۔ بیگم نے اپنی پیشانی پر گرے ہوئے بالوں کو سنوارتے ہوئے فرمایا، تو ہم واقعی بگڑ گئے، لیکن قہر درویش بڑھ جانے درویش کے مزاح ہم نے سارا غصہ اپنے آپ پر اتارنے کا فیصلہ کیا اور عرض کیا، آپ نوکرانی کا اشتہار خود ہی تیار کر کے اردو اخبار میں دے آئیے، ہمیں تو اس کام سے دوری رکھی۔ یہ سن کر ہماری نصف بہتر نے اشتہار بنایا اور قریب کے اخباری دفتر میں جا کر دے بھی آئیں۔ اگلے روز جب اخبار میں اشتہار چھپا تو خلاف توقع بیگم کے موبائل پر ایک بھی کال نہیں آئی۔ چونکہ
इतवार का दिन था, इसलिए हम भी घर पर छुट्टी मना रहे थे। बेगम ने घर में झाड़ू लगाने के बाद बर्तन धोते हुए कहा, इश्तहार के बाद ही ना तो कोई नौकरानी काम मांगने आई और ना ही किसी ने मोबाइल पर बात की। हमने भी शरारतन अर्ज किया, ऐसा महसूस होता है कि इश्तहार पढ़कर नौकरानियाँ शायद ये सोचकर खौफजदा हो गई कि जिस मालकन ने इतनी सख्त शरायत रखी है वो कितनी सख्त होगी, तो खुद कितनी सख्त होगी। आपको तो बस मुझ में कीड़े डालना है, निकालना ही आता है, लेकिन मैं नौकरानी अपनी मर्जी के मुताबिक ही रखूँगी। लेकिन रखेंगी तो तब जब कोई आएगी। हमारी दलील जमील सुनकर बेगम खामोश हो गई, लेकिन हम ये सोचकर खुश हुए कि हमारी निस्फ बेहतर को हमें निस्फ बदतर बनाने का सुनहरी मौका कम से कम नौकरानी के सिलसिले में तो नहीं मिला। लेकिन अफसोस, हमारी खुशी लम्हाती साबित हुई और काल बैल के बजते ही काफूर हो गई, क्योंकि दरवाजे की घंटी बजाने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक काली कलोटी और अधेड़ उम्र की नौकरानी थी। उसे देखकर जहाँ हमें बेहद कोफ्त हुई, वहीं बेगम निहायत मसरूर हुई। आखिर उन्हें उनकी पसंदीदा नौकरानी मिल गई थी। उन्होंने बड़े प्यार से नौकरानी को मुखातिब किया, आइए बुआ, और एक स्टूल पर बैठने के लिए कहा। बुआ यानी नौकरानी निहायत तमकनत के स्टूल पर विराजमान हो गई और साथ ही बेगम के नर्म बर्ताव से ये भी समझ गई कि मौसूफा को नौकरानी की सख्त ज़रूरत है। लिहाजा वो बुआ ने दरियाफ्त किया, बीबी जी हमें कौन कौन से काम करने होंगे? सुबह को झाड़ू और पोछा करना होगा और बर्तन धोने के अलावा खाना बनाना होगा, क्योंकि हम दोनों दोपहर का खाना अपने साथ ही घर से ले जाते हैं। शाम को बर्तन धोने के अलावा रात का खाना भी बनाना होगा और हर दूसरे दिन वॉशिंग मशीन के कपड़े धोने होंगे। अच्छा, तो आप हमें अपना घर दिखा दें ताकि हम ये अंदाज़ा लगा सकें झाड़ू पोछे में कितना टाइम लगेगा। आइए घर दिखाती हूँ। और नौकरानी साहबा को बेगम घर दिखाने लगी। बी नौकरानी ने ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, लॉबी वगैरह का बगौर मुआयना किया और कुछ सोचकर फरमाया, आपका घर तो बीबी जी काफ़ी बड़ा है, शायद 400 गज का होगा। झाड़ू पोछे में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। नहीं हुआ, 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। पहले जो अबुआ थी वो सिर्फ 1.5 घंटे में झाड़ू पोछे से फारिग हो जाती थी। बेगम ने आहिस्ता से कहा तो बुआ ने सवाल किया, पहली बुआ पहली बुआ ने आपका घर क्यों छोड़ा? ये सवाल सुनकर बेगम सटपटा गई। अपनी नौकरानी को कैसे बताएं कि पुरानी नौकरानी खूबसूरत थी? लिहाजा हमने फौरन जवाब दिया, दरअसल पहली बुआ के शौहर बंगाल में बीमार हो गए। उनकी तीमारदारी के लिए दिल्ली से बंगाल जाना पड़ा और वो हमारे यहाँ काम छोड़ गए। अच्छा बाबूजी, आपके बच्चे कितने हैं? अब बुआ हमसे मुखातिब हो गई। हम फैमिली प्लानिंग में यकीन रखते हैं बुआ, लिहाजा हम 2 और हमारे बच्चे भी 2 हैं। इनकी उम्रें क्या क्या है? बुआ ने दरियाफ्त किया तो बेगम ने ढल्लाकर कहा, आपको बच्चों की उम्र से क्या लेना? क्यों नहीं लेना? बड़े बच्चों के कपड़े भी बड़े होते हैं जिन्हें धोने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और बड़े बच्चे खाते भी ज़्यादा हैं, इसलिए दोनों टाइम खाना भी बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है और रोटी बनाने में तो ज़्यादा वक्त लगता है। हमारा बेटा 12 साल का है और बेटी 8 साल की, और क्या पूछना है? हमने कुछ बताया तो कहने लगी, बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हैं, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए पगार 8,000 रुपये महीना और दोनों वक्त का नाश्ता खाना। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है, बेगम ने एहतजाज किया। काम भी तो बहुत ज़्यादा है, बुआ ने फौरन जवाब दिया। बहरहाल कुछ वो हड्डी कुछ हम बढ़े कि मिज़दार 60,000 रुपये माहाना पर तनख्वाह तय हो गई। लेकिन तनख्वाह तय होते ही नौकरानी साहिबा ने बेगम से कहा, बीबी जी मेरी कुछ और भी शर्तें हैं। क्या कहा? और भी शर्तें? आप तो बुआ हज कर रही हैं, खैर बतलाइए और क्या शर्तें हैं? हमारी बेगम ने हैरान और परेशान होकर दरियाफ्त किया तो बुआ नौकरानी गोया हुई, हम हर इतवार को छुट्टी करेंगे और हर दूसरे महीने 8 दिन के लिए अपने वतन बंगाल जाया करेंगे, लेकिन आप इन छुट्टियों की पगार नहीं काटेंगे। चलो नहीं काटेंगे, बेगम ने सर तस्लीम खम करते हुए कहा। तो बुआ फिर बोली, हमारी एक शर्त यह भी है कि हम बढ़िया क्वालिटी की फिनाइल से ही फर्श की सफाई करेंगे, बर्तन धोने के लिए सुपर क्वालिटी का पाउडर और धुना इस्तेमाल करेंगे, खुशबूदार साबुन से ही कपड़े धोएंगे,
सर्दियों में हम सिर्फ गर्म पानी से ही सारा काम करेंगे। अपने 5 बच्चों और उनके अब्बा के लिए दोनों टाइम का खाना और नाश्ता देने के लिए हम अपने घर भी जाया करेंगे। लेकिन बुआ 6 आदमियों का खाना और नाश्ता तो बहुत होता। बेगम ने दबे अल्फाज में एहतजाज किया तो बुआ भड़क उठी। देखिए भी हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों और उनके अब्बा को नज़रअंदाज नहीं किया जाना, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। खाना और नाश्ता तो हम लेकर ही जाया करेंगे। बादल नौखास्ता बेगम ने बुआ की ये शर्त भी तस्लीम कर ली, लेकिन बुआ खुद भी मुतमईन नहीं हुई और बोली 2 आखिरी शर्तें और भी। एक शर्त का ताल्लुक तो बीवी जी आपसे है। मुझसे? बेगम ने ताज्जुब से पूछा, लेकिन बुआ ने निहायत मतानत से जवाब दिया, जी आपसे ही है। और वो ये कि आप हमारे काम में कीड़े या कमियां नहीं निकालेंगी, बल्कि प्यार से मुझे समझाएंगी कि काम किस तरह बेहतर हो सकता है। बीबी जी आप हमें इस तरह नहीं डांटेंगी, बीबी जी आप हमें इस तरह नहीं डांटेंगी जिस तरह आप अपने शौहर बाबूजी को डांटते। हम ये सुनकर शर्मिंदा हो गए। हम दोनों को अब आपकी ये शर्त भी मंजूर है, तो अब आप कल से काम पर आ रहे हैं। बेगम ने मालूम किया तो बुआ हमसे मुखातिब हुई, बाबूजी उम्मीद है कि आप बीवी और नौकरानी के फर्क को हमेशा ध्यान में रखेंगे और भूल से भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जैसी बीवी जी के साथ करते हैं। बुआ का ये जुमला सुनकर बेगम ने हमें मशकूक और मासूम निगाहों से देखा, लेकिन हमें सोचते बहुत गुस्सा आया। ये बुआ हमें इतना बदशौक क्यों समझती? ये सही है कि हम शायर हैं और शायर अमूमन आशक मिजाज होते हैं, लेकिन इतने बदशौक हरगिज़ नहीं है कि हमारा तो जी चाह कर बुआ को डांटते हुए कहें, कभी अपनी सूरत आईने में देखिए और अपने अधेड़ का हिसाब लगाए, लेकिन बीवी की शोलाबार निगाहों और इस खदशे के पेश नज़र हमने कुछ नहीं कहा कि कहीं ये नीम बुलहन नौकरानी के हाथ से न निकल जाए और हमें मज़ीद झाड़ू पोछा करना पड़े। लिहाजा हमने यकीन दहानी कराते हुए कहा, देखिए बुआ हम ख़ानदानी शरीफ हैं और हमारे दादा का नाम शराफत हुसैन था, अब्बा का नाम शरीफ अहमद और हम सारे मोहल्ले में शरफों के नाम से मशहूर हैं। यूँ भी आप तो हमारी माँ और बड़ी बहन की तरह। हम अभी अपना जुमला भी मुकम्मल नहीं कर पाए थे कि बुआ का पारा चढ़ गया और वो गर्मी। देखिए बाबूजी हमारी उम्र मत बढ़ाइए और ना हमें अपनी बड़ी बहन या माँ बनाइए। अगर आपने आइंदा ऐसी बातें की तो हम आपके घर काम करना छोड़ दें। नहीं नहीं, हम आइंदा ऐसा नहीं कहेंगे। हमारा मतलब तो सिर्फ ये साबित करना था कि हमारे गरीब खाने में आपकी दौलत, इज्जत और असमत बिल्कुल महफूज है। हमने घबरा कर कहा तो बेगम भी हमारी हिमायत में शायद इसलिए आ गए कि मुबादा नौकरानी हाथ से निकल ना जाए, वरना तो वो हमेशा ही हमें मशहूर समझती। इसलिए बोली, देखिए वह हमारे ये यानी शौहर शायर ज़रूर है लेकिन शरीफ भी है और हमेशा शराफत से काम लेते हैं। किसी और से तो क्या, ये तो मेरे साथ भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करते। लिहाजा आप बखैर किसी खौफ अंदेशे के कल से काम करा लेंगे। बीबी जी अगर बाबूजी आपके साथ भी ऐसी वैसी हरकतें नहीं करते तो फिर आप 2 बच्चों की माँ। बुआ का जुमला काट कर बेगम फौरन बोली, बुआ मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। ऐसी वैसी हरकत से मेरी मुराद थी छेड़छाड़ और बेइज्जती। ठीक है बीबी जी, आपकी बात का मैंने गलत ही मतलब निकाल दिया, लेकिन सब बातों और शर्तों को खोलकर कहना जरूरी था। खैर अब मैं कल से काम पर करने आ जाऊंगी। और ये फरमाकर बुआ तो चली गई, मगर हम दोनों अपनी बेबसी और बेकसी का मातम करते हुए रह गए और हमारे मुँह से बेसाख्ता ये शेर निकला, ये करिश्मा है हमारे दौर का है, नौकरानी अब महारानी बनी। शुक्रिया।